Very good morning, class ninth. So, I'm going to start today with a very new chapter, that is our chapter number 13. And chapter name is Why Do We Fall Ill? As you can see, the name is very simple. Why do we fall ill? Very easy to understand for all of you, but the only thing is you need to understand few things in this chapter, right? Let's start with our today's introduction about this chapter. As you can see its name, why do we fall ill? हम बीमार होते क्यों हैं? इस मेन थिंग पे हम पहुंचेंगे बाद में. फर्स्ट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू विद द टर्म कि हेल्दी हेल्थ क्या होती है. यूजली अगर जब भी मैं पूछती हूँ पीपल से दैट मैनी स्टूडेंट्स से मैम वी आर व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिजीज़, व्हेन यू आर नॉट इंजर्ड, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ पेन, देयर इज़ नो इलनेस, हम फिज़िकली फिट हैं, सो यूजली उसको हेल्दी बोला जाता है. दैट इज़ अ जनरल टर्म विच वी यूज़ फॉर हेल्थ, that we are not having disease, we are free from any kind of illness, कोई हमें चोट नहीं लगा है, कहीं पेन नहीं हो रहा है. बट एक्चुअली हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ योर फिजिकल, mental and social well-being. A person who you are calling healthy, it means वो physically तो fit है ही, physically healthy होना बहुत ज़रूरी है, plus he is mentally healthy, he should be socially very very active. That person is called complete हेल्दी इंडिविजुअल. एक पर्सन जो फिज़िकली भी फिट है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट उसका जो सोशल इंटरेक्शन है दैट इज़ ज़ीरो ऑलमोस्ट, देन इट मीन्स देयर आर फ्यू थिंग्स. इसका मतलब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको डिस्टर्ब करती हैं दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में. दैट काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. इसका मतलब कि अगर एक पर्सन हेल्दी है तो वो तीनों चीज़ों में परफेक्ट होना चाहिए. सिर्फ डिजीज़ ना होना का मतलब हेल्दी नहीं हैं आप. इट मीन्स यू शुड बी फिज़िकली फिट, you should be mentally fit, you should be socially very fit. Important characteristic. Now what in your, according to you, what should be the important characteristic of a person which is having good health? as now you know that health का मतलब है हमें तीनों फैक्टर्स कंसिडर करने हैं. हमें फिज़िकल पे लेवल पे भी बात करना है, हमें सोशल लेवल पे भी बात करना है, हमें मेंटल लेवल को भी देखना है. सो नाउ फिजिकल मीन्स द पर्सन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिकनेस एंड डिजीज़. इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ unnecessary anxiety. It should be free from any social disturbances and psychological tensions, as well as the person should have self-confidence. He should be able to stand, to answer, to interact. He should feel joy in his living life. He should be happy in his life. He should be ability of a person to work efficiently, effectively, with its best capabilities. These all are the characteristics of a person who shows good health. कि उसको किसी तरह की कोई sickness और disease नहीं है. He is free from any kind of unnecessary disturbances and anxiety. He is free from social and psychological tension. He is very confident. He is happy in his life. He is able to work perfectly, efficiently, effectively at its best capabilities. So conditions, from all these characteristics, what are the conditions which are necessary for good health? First, आपका जो environment है, गुड फिज़िकल एंड सोशल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए. तभी हम कई बार बोलते हैं कि आपकी कंपनी, आप कैसी एरिया में रहते हैं, आप किसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, दैट अफेक्ट्स अ लॉट ऑन योर हेल्थ. आप द पर्सन हु इज़ इकोनॉमिकली सफिशेंट,
अगर आपके पेरेंट्स दे आर डूइंग इकोनॉमिकली वेल, और इवन इन योर फ्यूचर यू आर अर्निंग वेरी वेरी वेल, बिकॉज हम सब पढ़ाई तो उसी के लिए करते हैं, for to earn well, then that leads to good food. You can buy good food, as well as you can be good in the, you can be happy in your life also. इकोनॉमिक कंडीशन मेंटल लेवल पे बहुत इफ़ेक्ट करती है. सोशल इक्वालिटी, अगर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बिकॉज ऑल आर इक्वल, देयर इज़ नो देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द डिफरेंट कास्ट, बिकॉज ऑल कास्ट दे आर सेम, they all are equal. So that kind of conditions leads to the peace. अगर हम सोचते हैं कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक जगह पे रह रहे हैं, सबको एक तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, that leads to happy life. So good, first I am taking these 3 points from which I am taking good physical and social environment. सो आपके अकॉर्डिंग फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, आपकी सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए? दे शुड बी क्लीन. आप रह सकते हैं गंदगी में? कोई नहीं रह सकता. गुड सैनिटेशन, हम बोलते हैं क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. इवन व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल, योर शूज़ शुड बी पॉलिश्ड, योर हैंड्स शुड बी क्लीन, योर बैग्स should be clean, your notebooks should be properly, they should be clean and properly maintained, as well as before your meals, before your food, you all are in a habit of washing your hands. You should not wear your dirty clothes. These all are what? These all are sanitation, good sanitation habits. प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, ऐसा नहीं कि जहाँ बस टॉफ़ी का रैपर खोला और फेंक दिया. सेम ऐसा ही अगर आपने बनाना खाया वहाँ पे फेंक दिया रोड पे. नो, देयर शुड बी अ प्रॉपर एरिया जहाँ पे आप गार्बेज को डालो, जैसे हम डस्टबिन यूज़ करते हैं. इवन डस्टबिन का गार्बेज भी आपको एक प्रॉपर एरिया आपकी कॉलोनी में होना चाहिए, वेयर इट्स डिस्पोजल शुड बी प्रॉपर. उसकी एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि अपने घर के बाहर ही आप कचरा इकट्ठा करते रहें. दैट इज़ नॉट अ गुड फॉर योर फिजिकल एज वेल एज सोशल इन्वायरमेंट. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, आप गंदा पानी पीने से दैट लीड्स टू डिजीजेस. आप बन जाएंगे हेल्दी? नहीं बन सकते. सो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन. सो योर सराउंडिंग्स शुड बी क्लीन. You should maintain good sanitation habits. Garbage disposable should be proper, and you should be in a habit of drinking clean and safe water. द सेकेंड हमारा पॉइंट क्या था? गुड इकोनॉमिक कंडीशन. हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप? सो दैट यू कैन गेट अ गुड जॉब. गुड जॉब मीन्स गुड सैलरी. Good salary means good earning. It means you will can take care of the family. So it means for earning to have good food as well as good healthy life. For that leads to your good economic condition. And when a person is economically good, he is very satisfied at the mental as well as social level. नेक्स्ट इज़ द सोशल इक्वालिटी एंड हारमनी. हमने बोला कि सोशल इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज पॉइंट्स, हारमनी मतलब प्यार से रहना, प्यार से एक दूसरे का ये कभी नहीं देखना कि ये ऐसा है वो ऐसा है. नो, व्हेन यू थिंक दैट एवरी वन इज़ इक्वल, एवरी वन इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट लीड्स टू अ वेरी हेल्दी एंड peaceful life. So 3 points I have discussed here for the good health, that is good physical and social environment, then good economic conditions, and social equality and harmony. अब जब आपको पता चल ही गया है कि हेल्दी कौन होता है, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन द हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री में क्या डिफरेंस है. मैंने 2 टर्म्स आपको बताए हैं, वन इज़ हेल्दी and another one is disease free, and I'm asking you that how do you differentiate? Healthy means the person, it is a state of a physical, mental and social being. Means healthy, a person who is healthy, he is healthy physically, healthy mentally as well as socially. That is a healthy thing. Disease free, it means we are only talking of
absence from the disease. It is that state a person is free from the disease. A healthy individual, it refers, healthy term actually, it refers to individual physical as well as social environment. But disease free term से आपको क्या पता चलता है? डिज़ीज़ फ्री तो एक इंडिविजुअल अकेला हो सकता है. आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि फिजिकली डिजीज़ फ्री, सोशली डिजीज़ फ्री. नहीं, इट इज़ द इंडिविजुअल हु इज़ डिजीज़ फ्री. सो इट रेफर्स टू ओनली द particular individual. When you say health, it means health means individual has good health. He is fit individually, he is fit physically, he is fit socially. But when you say disease free, you can say then ज़रूरी नहीं है ना कि अगर वो disease free है तो वो physically भी strong है. He is socially also strong. So individual जो disease free है, it may have good or it may have पुअर हेल्थ. व्हाट इज़ अ डिज़ीज़? अब तक हम डिज़ीज़ करते आ रहे हैं, बट एक्चुअली व्हाट इज़ अ डिज़ीज़ एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज़? दिखती है, कैसी दिखती है? कब बोलते हैं हम हमें कोई डिज़ीज़ है? व्हेन अ पर्सन इज़ हैविंग any kind of disease, और या मैं बोलूँ कि when a person is affected by any kind of disease, या तो उसकी नॉर्मल, सबसे पहली चीज़ क्या होती है? एक बॉडी आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, आप एकदम परफेक्टली, यू आर फीलिंग वेरी गुड. सो इसका सबसे पहला चीज़ क्या होती है कि योर फंक्शनिंग, जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग है, इट चेंजेस, राइट? Second, if it is a very serious disease, appearance of one or more system of the body changes for the worse. हो सकता है जैसे a person who is suffering from diabetes, sometime it start affecting the kidneys, right? Sometime it start affecting the blood cells also. तो बहुत सारे एक के साथ साथ और सारी systems भी अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. सो डिज़ीज़ में नॉर्मल फंक्शनिंग तो अफेक्ट होती ही है, बट अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी चेंजेस, दैट शोज़ द वर्स कंडीशन. सो जब ये बहुत सारे चेंजेस आपको ऑब्ज़र्व होने शुरू होते हैं, सो ये आपको एक साइन देते हैं कि ओके, अब जैसे फीवर आ जाता है, कई बार हमें लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, हेडेक बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है. आपको सपोज, आई एम गिविंग वन एग्जांपल, व्हेन नाउ यू आर फीलिंग हेडेक कंटिन्यूसली फॉर 7 days, फॉर 5 days, क्या आपको कंडीशन लगता है? इट कैन बी ड्यू टू योर आई साइट प्रॉब्लम, और यू मे आर हैविंग सम काइंड ऑफ अदर प्रॉब्लम. कुछ आप टेंशन में रह रहे हो, या फिर समथिंग विच इज़ डिस्टर्बिंग यू, जो कि आपकी बॉडी में अफेक्ट कर रही है. सो दीज चेंजेस आर बेसिकली गिव राइज टू साइंस ऑफ द डिज़ीज़, और जिसको आप बोलते हो सिम्टम्स. आप जब बहुत ज़्यादा ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, आप क्या जाते हो? डॉक्टर के पास. फिजिशियंस जो आपको देखते हैं, दे लुक फॉर द साइंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़. वो देखते हैं कि क्या सिम्टम्स एक पर्सन में आ रहे हैं. उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दे परफॉर्म्ड टेस्ट के बिना कभी भी हम कंफर्म नहीं कर सकते बिना देखे कि विच काइंड ऑफ डिजीज़ यू आर suffering. So changes क्या हैं? Changes, they are kind of signs of the disease which are called symptoms, and on the basis of these symptoms, doctor find out that which kind of disease you are suffering from. So the types of disease, after now, once we are know that what we are going to study in this chapter, so in the second lecture I will talk with you, that is the types of diseases. It can be acute, it can be chronic, it can be non-infectious or non-communicable, it can be infectious or communicable disease. So one by one हमें ये diseases पढ़नी हैं in our next lecture, right? We will start with these diseases in my next lecture. So what kind of question which sometimes asked from this topic, that state any 2 conditions which are essential for good health. These all are your in-text question from the NCERT. State any 2 conditions which are essential for being free of disease. अब ध्यान से पढ़ो, फिर से बैक पढ़ो एक बार. क्वेश्चन नंबर 1, state any 2 conditions which are essential for good health.
सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, स्टेट एनी टू कंडीशन विच आर एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। दोनों में कुछ डिफरेंस लग रहा है। द फ्री ऑफ डिजीज होना भी तो गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है। सो आर द आंसर्स ऑफ अबव क्वेश्चन दे आर सेम or they are different? If they are different, why they are different? If you have understood this lecture, you can easily answer these questions. So next I am going to meet you with the another lecture that is on the type of